Hello children, today in this video we are going to study our environment chapter number 22 Patola. Since ancient times, many different places of our country is famous for making various types of things, means handicrafts. These includes Patola from Patan, Gujarat. Now have a look in your textbook, page number 166. Moksha and Nirmal live in a Salvivada of Patan. Their home is always filled with bundles of bright colored silk threads. Their mother Kokilaben and father Ashok Bhai and everyone in the family are weavers. The weaving that they do is very beautiful and special. मोक्ष और निर्मल पाटन शहर के सालवीवाड़ा में रहते हैं। उनका घर कलरफुल रेशम के धागे से भरा रहता है। उनकी मम्मी कोकिलाबेन और पापा अशोक भाई और फैमिली के सारे लोग बुनकर है, यानी कि बुनाई का काम करते हैं। उनकी यह बुनाई बहुत ही सुंदर और ख़ास तरीके से होती है, समथिंग स्पेशल। फ्रॉम मैनी सेंचुरीज Salvi families are living in the Salvivada. The special weaving work done by them is known as Patola. Nowadays here, Patola House has established to inform Indian people and people from all over the world about their special weaving work. The craftsmen who made Rani Ki Vav in Patan, they also had used this design of Patola in their stone work. The poets of Gujarat have also discussed about this craft in their folk songs like Chela jire mari hatu Patan thi patola monga lavjo. Here you can see. सालवीवाड़ा में बहुत सालों से, मीन्स की सदियों से सालवी फैमिली रह रहे हैं और उनके द्वारा किया जाने वाला स्पेशल वर्क, बुनाई का वर्क जो है ना, वो पटोला के नाम से प्रसिद्ध है। अभी इस जगह को इंडिया और पूरे वर्ल्ड में से आने वाले टूरिस्ट इस बुनाई से वाकिफ हो, इसलिए पटोला हाउस स्थापित किया गया है। पाटन में आई हुई रानी की वाव जो है ना, उसमें जो शिल्प काम है ना, वो भी पटोले के प्रिंट उस समय के शिल्पकारों ने अपनी कला से, मीन्स डिज़ाइन से की है। स्टोन वर्क में वह डिज़ाइन किया गया है और गुजरात के कवियों ने, मीन्स पोइट्स ने भी अपने फोक सॉन्ग्स में पटोले की यह कला को बखूबी उसका उल्लेख किया है, जैसे कि छेला जीरे मारी हाटू पाटन थी पटोड़ा मोंघा लावजो। Moksha and Nirmal's parents learned this art from their parents. Now Moksha and Nirmal also help their parents after coming back from school and learning this art. ये जो कला है ना, वो मोक्ष और निर्मल के मम्मी पापा ने अपने बुजुर्गों से सीखी थी। अब मोक्षा और निर्मल भी स्कूल से आने के बाद अपने मम्मी पापा को हेल्प करते हैं और यह कला सीखते हैं। Dear children, most of the traditional arts are learnt at home only, like patola. Different kind of weaving can be learnt. It's a traditional occupation. Like these other traditional occupations, means arts are learnt at home only. For example, carpet weaving, making toys, making perfume, etc. Now on page number 167, प्रोसेस ऑफ मेकिंग पटोलास ऑफ पाटन। पाटन की जो पटोले हैं ना, उसको बनाने की प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। ओके, सो यू कैन सी द पिक्चर हियर। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट हाउ टू मेक अ पटोला। पेज नंबर 168, फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। The threads which are used to weave patola is made from mulberry silk, which is white. पटोले की बुनाई में यूज़ किए जाने वाले रेशम के तार जो होते हैं ना, वो मलबेरी सिल्क में से बनाए जाते हैं, जो कि वाइट होते हैं।
Father brings these silk threads from outside. The threads are opened and made into a grid laid out in a crisscross manner. पापा यह रेशम के तार बाहर से मंगवाते हैं। रेशम के तार को खोल के ताना बाना बनाया जाता है क्रिस क्रॉस मैनर में। ताना बाना मीन्स इट्स अ वीविंग जम। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ओके, वाइट सिल्क थ्रेड। ताना बाना मीन्स ये जो दिखाई देता है ना, ये स्टैंडिंग लाइन जैसा दिखता है और ये फील्ड स्लिपिंग लाइन, ताना बाना क्रिस क्रॉस मैनर में। After that, design is made on that. Design thread is tied thereafter, which is called बांधनी वर्क। क्रिस क्रॉस मैनर में जो ग्रिड बनाई होती है ना, मीन्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल्स में, उसके बाद उस पर डिज़ाइन बनाई जाती है। डिज़ाइन वाला जो तार होता है ना, उसका सही माप लेके डोरी बांधी जाती है, जिसे बांधनी काम कहा जाता है। The part which has to be dyed is kept open and according to measurement it is dyed and tied up again. जिस हिस्से में कलर करना होता है उस हिस्से के धागे को छोड़ के उस पर माप के हिसाब से कलर करके उसे फिर से बांध दिया जाता है। This work is hard and time consuming. When grid is designed and finished dyeing, after that it is put up on the handloom for weaving. यह काम बहुत ही मेहनत और टाइम मांग लेता है। ताना और बाना के तार पे डिज़ाइन और कलर होने के बाद उसे वीविंग के लिए हैंडलूम पे रखा जाता है, हाथ करगे पे। Hence, after the hard work of 4 to 6 months, beautiful and colorful patola is prepared. ऐसे 4 से 6 महीने की मेहनत के बाद सुंदर और कलरफुल पटोला तैयार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ताना बाना के बाद में ऐसे कलर हुआ है, प्रिंट हुई है और यहाँ पे पूरा पटोला रेडी हो गया है। The grid is fast colored, so there is no chance of washing out the color of patola. Durability and color of patola remain the same for many years. That is why it is a saying in Gujarati that पड़ी पटोरे बाद फाटे पण फीटे नहीं। ताना और बाना पक्के कलर से कलर किए होने की वजह से कलर निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। पटोले का टिकाऊपन और कलर की चमक सालों तक वैसी की वैसी ही रहती है। इसलिए गुजरात में कहा जाता है कि पड़ी पटोरे बाद फाटे पण फीटे नहीं। मीन्स कि जो पटोला तैयार किया गया है वो यूज़ करने की वजह से फट सकता है, पर उस पर जो प्रिंट जो की गई है ना, वो कभी निकल नहीं सकती। डिज़ाइन वैसी की वैसी ही रहती है। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन एज पार्ट 2। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।